اچھا انوشا، میں سب سے پہلے تھوڑا سا آپ سے پوچھوں گی کہ آپ آغا خانزم سے اسلام کی طرف آئی ہیں، تو آپ کی یہ جرنی اوبویسلی بہت خوبصورت رہی ہوگی. بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کا آپ نے انالیسس کیا ہوگا، بہت سی چیزوں کو پڑھا ہوگا، بہت سے جو کمپیریٹیولی جتنے بھی مذاہب ہیں آپ نے ان کی اسٹڈیز کی ہوں گی، اس کے بعد آپ نے اسلام کو چنا ہوگا. لیکن میرا صرف آپ سے اتنا سوال ہے کہ کوئی ایک وجہ ایسی بتا دیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ اسلام قبول کرنا چاہیے اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جو راہ ہدایت ہے ہمارے لیے اور جو انسانیت کا درس دیتا ہے. کوئی ایک ریزن آپ مجھے بتائیے انوشا. جی سسٹر، آپ کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں آغا خانزم سے جو ہے وہ اسلام کی طرف آئی ہوں، اور واقعی ہی یہ سفر بہت خوبصورت رہا. اس میں ریسرچ بھی کی، میں نے ڈفرینٹ مذاہب کو پڑھے، میں نے ہندوازم کو بھی پڑھا کیونکہ ہمارے مذہب میں زیادہ تر جو ہے وہ ہندوازم کو فالو کیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ میں نے کرسچینٹی پڑھی اور بہت ساری چیزیں پڑھی. لیکن میں جب تک اس مذہب میں تھی، کیونکہ ہم لوگ جو تھے وہ ہم لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہمارے جو امام ہیں آغا خان، وہ جو ہے وہ علی کی آل میں سے ہیں، تو ہمیں ان سے دعائیں مانگنی چاہیے. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے مسلمان ہیں. تو یہ چیز مجھے کھٹکتی تھی کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اور لوگوں کی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم پھر رمضانوں میں روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم عمرہ کیوں نہیں کرتے، حج کیوں نہیں کرتے؟ اور ہاں، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کلمے کے ساتھ ہم لوگ ایڈ بھی کرتے تھے نا. ایک ان کا اسماعیلیوں کا ایک الگ سے کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد علی الامیر المومنین علی اللہ. تو یہ ساری چیزیں تھی، لیکن روح کو سکون نہیں تھا. روح بہت بے چین ہوا کرتی تھی کہ لائک کیوں ایسا کیوں ہے. پھر تھوڑا سا جب سمجھ آئی، بڑی ہوئی، تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کی، میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، تو اسلام بہت 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 اتنی چیزیں ملی مجھے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جیسے بینگ اے وومن، میں ایک عورت کے حساب سے اگر سوچوں تو میں نے پھر اپنے عورت کے حقائق کو جو ہے وہ سرچ کرنا شروع کیا. تو میں نے جب پڑھا اسلام میں بیٹی کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اور عورت کے کیا حقوق ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، ساری ساری باتیں مجھے صرف اور صرف اسلام میں ملی. ہندوازم میں بہت ساری ایسی غلاظت ملی جس کو آپ پڑھنا تو کیا دیکھنا تو کیا، پڑھنا بھی ڈسکس نہیں کرو گے. کرسچینٹی میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. لیکن اسلام میں بیٹی کا مقام اتنا اتنا افضل ہے. اس میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے گھر پر لڑکی ہو اس کو دفن نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو، اور اس کو کسی لڑکے پر بھی فوقیت نہ دو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت سے باہر نکال دیں گے. اور اگر تم اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے تم عزت دو گے، اس کو جو تم ہے ذلیل نہیں کرو گے، اس کو دفن نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں مقام دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ حدیث ہے. تو اب بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں نے پڑھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ سکون جو ہے نا وہ مجھے اسلام میں ملا. جو سکون تھا نا وہ مجھے کہیں اور نہیں ملا. سکون کس بات کا؟ سکون اس بات کا کہ میں جو تھی آزاد تھی. آزاد کیسے تھی؟ ایک برقعے کے اندر، ایک نقاب کے اندر میں لوگوں کی نظروں سے بچی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، مجھے ڈر نہیں تھا کہ کوئی مجھے مطلب بری نظر سے دیکھے گا. میں اگر پہلے جیسے میں ڈریسنگ کرتی تھی، میں بہت انکمفرٹیبل ہوتی تھی ان ڈریسز میں بھی، ان چیزوں میں بھی. لیکن اسلام میں آنے کے بعد میں نے پڑھا کہ عورت کا پردہ کیا چیز ہوتی ہے. آغا خانزم میں مسلمان کہلاتی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پردہ کیا ہے. لیکن اسلام میں آنے کے بعد مجھے محرم، نامحرم، پردے کا پتہ چلا. اس کے بعد بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے اسلام میں نے وہ اسلام سے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ نساء کی پارہ 4 رکوع 12 آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک منٹ سسٹر، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. جی جی. تو دیکھا ماشاءاللہ سے کس طریقے سے انوشا سسٹر کی یہ جرنی رہی. اور
واقعی اسلام ایک بہت خوبصورت اور مکمل مذہب ہے. لگتا ہی نہیں کہ اس میں مزید کسی چینجنگ کی ضرورت ہے اور نعوذ باللہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے. ایسا بالکل بھی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کی ہر طرح کے لوگوں کے لیے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور اسپیشلی جو ہماری عورتوں کے لیے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جو عورتوں کو تحفظ دیا گیا ہے، جو ان کو ان کے حقائق دیے گئے ہیں، اللہ نے وہ بڑے قرآن میں خوبصورت بتایا ہیں. ہے سسٹر، اللہ نے قرآن میں جی جی فرمایا ہے، بیوی کا جو حکم تھا، عورتوں کے حکم کے بعد بیوی کا جو حکم آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم جو ہے بیویوں کو تعلق حکم فرمایا اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. جب اللہ نے فرما دیا، تو جب اسلام میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا ہے کہ بیوی کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، تو پھر تو گنجائش ہی نہیں رہتی ہے نا کسی ایسے برتاؤ کی جو ہندوازم میں عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسی گنجائش بالکل ہی نہیں رہتی ہے. اس کے بعد بالکل. بیوی کو حق مہر کا جو ہے وہ حق دیا ہے، کسی مذہب میں حق نہیں ہے. اس کے علاوہ ماں کو کتنا بڑا رتبہ دیا ہے، جہاں ہندوازم میں کمپیئر نہیں کر رہی ہوں، جس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہندوازم میں ماں کو دھرتی ماں کہا گیا ہے، دھرتی ماں بھی کہتے ہیں، اور اس دھرتی پہ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں آپ خود ہی سوچیں. لیکن اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک عورت دھرتی ماں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام میں ماں کا مقام کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں گی کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے فرمایا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے حسن اخلاق کا جو ہے وہ حقدار ہے تو وہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر اس شخص نے سب فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ پھر دوبارہ فرمایا تمہاری ماں. اور اس کے بعد تیسری مرتبہ دوبارہ جب فرمایا کہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری بار میں تھا تمہارا باپ. یعنی کہ مرد کے اوپر بھی 2 مرتبہ فوقیت دی گئی نا ماں کو، کہ 2 دفعہ ماں کہا گیا، اس کے بعد باپ آیا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیوں اسلام ناپسند کرتی؟ مجھے اتنا سکون، جو کہتے ہیں نا کہ مینٹلی بندہ جب سیٹسفائی ہو جائے نا، تو اس کو آپ اسلام کہتے ہیں. اسلام نے مجھے سکھایا کہ تم معاف کر دو. ماشاء اللہ، کیا بات کر دی ہے آپ نے کہ مینٹلی جب بندہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. بالکل بالکل بالکل، اسی کو اسلام کہتے ہیں. اور اسلام نے مجھے معاف کرنا سکھایا. جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو نا، تو سسٹر آپ کے دل میں جو سکون ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، اب اللہ تو جان اور تیری، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تو وہ جانے. تو پھر آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہو. اس دنیا میں نہ صحیح، یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں نہ صحیح، لیکن آخرت میں تو حساب ہے کسی مذہب میں یہ؟ آپ مجھے لا کے دکھا دو. جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھے لا کے دکھا دو کہ اگر کسی مذہب میں ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی بعد جو آخرت کی زندگی ہوگی اس میں تم کو انصاف ملے گا. میں نے کسی مذہب میں نہیں پڑھا، ایون کہ میں نے ہاں، اس دنیا کچھ کی مذاہب میں زندگی. تو، ہاں کچھ سسٹر کچھ مذاہب کے اندر تو یہ ہے کہ ان کو نرخوں میں دھکیلا جائے گا صرف ایک غلطی کی وجہ سے. ان کے ہاں تو کوئی معافی تلافی بھی نہیں ہے نا، کہ معافی معافی تلافی ہوتی نہیں ہے، ہے. تلافی ہوتی ہے، بالکل نہیں ہے. اور عورتوں کو تو ویسے ہی بہت زیادہ ذلیل کیا گیا ہے وہاں پر، کہ اگر جی شوہر بالکل نہیں ہے تو بیوہ کو جلا کر راکھ کر دو، اس کو وہ ناپاک ہے، اس کو گھروں سے نکال دو. یہ وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام دیتا ہے. بالکل سسٹر، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. چلیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا اس کو ایکسپلین کیا. آپ کی بہت اچھی جرنی رہی ہوگی، اور ماشاءاللہ سے اب آپ اسلام میں ہیں، ہماری مسلمان بہن ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے آپ کی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، جو اپنی کتابوں میں بھی لکھ چکے ہیں، جو بڑی بڑی اس پر باتیں بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے انٹرویوز بھی دیتے ہیں، اور ہزاروں کی حسابوں سے انہوں نے خود بھی ایون کے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام قبول کرنا ان کو نصیب نہیں ہوا. تو یہ آپ کے خوش قسمتی ہے. اور آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ آپ کو کون سی ایسی چیز ٹچ کی تھی کہ عورتوں کے حقائق ہیں اسلام کے اندر، ماں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بیٹی کے حقوق ہیں، تو اس چیز کو آپ نے بہت اچھے سے بتایا. نو ڈاؤٹ اسلام یہ سارے حقوق دیتا ہے. اور جہالت کا جو دور تھا اس کے اندر کس طریقے سے عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، اور صرف جہالت کا دور نہیں، آج بھی بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو
इसी तरीके से औरतों के हकूक़ को पामाल कर रहे हैं, उनको ज़िंदा दरगो कर देते हैं, उनको लाशें बना देते हैं, उनके बेवा होने पर उनको किस तरीके से राख कर दिया जाता है, किस तरीके से घरों से निकाल दिया जाता है, किस तरीके से ज़लील और रुस्वा कर दिया जाता है। लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में हर तरह की, चाहे वो बेवा है, वो तलाक याफ्ता है, वो बेटी है, वो माँ है, वो बहन है, वो किसी भी सूरत में है गर्ज़, तो उसको इज्जत दी गई है, एक मकाम दिया गया है, उसको हुकूक दिए गए हैं और बहुत प्यारे उसूल हैं हमारी औरतों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं सिस्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके मुताबिक आज़ादी क्या है? जो हकीकी आज़ादी होती है, वो क्या होती है? आप आज़ादी को किस तरह से लेती हैं? आज़ादी, अगर मैं इस्लाम के हिसाब से आज़ादी बताऊं तो जितनी आज़ादी मुझे इस्लाम ने दी ना, उतनी आज़ादी तो मुझे आगा खानिज़्म में भी नहीं मिली। क्योंकि आगा खानिज़्म में जैसे कहा जा सके कि फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा है, जहां आप जो है वो नाच गाना, लड़कों के साथ अपने शौहरों के खिलाफ बोलना, और कुछ औरतों को लगता है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग औरतें हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम घर से बाहर निकलेंगे, हम कमाएंगे, मर्दों के शाना बशाना चलेंगे तो हम आज़ाद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम में आकर आपको ये चीज़ महसूस होती है कि असल आज़ादी तो इस्लाम ही आपको देता है। अब आप थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें सिस्टर इसको कि असल आज़ादी इस्लाम कैसे देता है, आप बताएं थोड़ा मुझे, बीइंग अ मुस्लिम। आप क्या कहेंगे बीइंग अ इस बारे मुस्लिम, में? मैं तो यही कहूँगी कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ने जो उसूल दिए हैं, प्यारे प्यारे जो ज़वाबित हैं, एक मुकम्मल हमारे पास इस्लाम है, मुकम्मल दीन है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इसके रूल्स को फॉलो करें, जिसमें औरतों के हकाइक हैं, जिसमें आपको एजुकेशन का हुक्म है, मैं समझती हूँ कि किसी भी औरत को फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट बनने की कोई ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। क्योंकि जो असल जो हकीकी एम्पावरमेंट मैं समझती हूँ, जो हकीकी आज़ादी मैं समझती हूँ, मैं यही समझती हूँ कि इस्लाम के जो हमारे दीन ने हमें जो प्यारे उसूल दिए हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को मैं आज़ादी समझती हूँ। क्योंकि मुझे जब मैं कहती हूँ ना, एक चीज़ होती है ना कि आप कहते हो कि अच्छा, कोई आपसे पूछता है कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो आप बाज़ दफ़ा कह देते हो मुझे टीचर ने कहा है मैं इसलिए कर रहा हूँ। बाज़ दफ़ा कहते हो कि मुझे मेरी मदर ने कहा है मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, लाइक आप बुर्का ओढ़ रहे हो, आप नकाब कर रहे हो, आप इज्जत से जा रहे हो रास्ते में, कोई आपको कहता है ना कि भाई तुमने ये वेल क्यों किया, तुमने ये हिजाब क्यों किया, तो आप जब कहते हो ना कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, तो उस वक्त फिर कुछ बचता ही नहीं अगले बंदे के लिए कि वो आपसे अगला सवाल करे। तो इससे बढ़ के आज़ादी क्या होगी? बिल्कुल सही कहा। और सिस्टर एक और चीज, इस्लाम हमें इस बात की इजाजत भी देता है, आज हमारे घर वालों ने हमें इजाजत दी है, तभी तो हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं जो इस्लाम को छोड़कर और इस्लाम को बदनाम करते हैं कि इस्लाम में आज़ादी नहीं है, इस्लाम हमें पाबंद कर देता है। तो इस्लाम हमें बेहयाई से बचाता है। आज अगर हमें आज़ादी नहीं होती तो क्या हमारे घर वाले हमें इजाजत नहीं देते, तो क्या हम मौजूद होते यहाँ? हम यहाँ पर हैं, बिल्कुल। ये इस बात को साबित कर देता है कि इस्लाम हमें आजादी देता है, लेकिन बेहयाई की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल। अच्छा सिस्टर, इसी से ना बात थोड़ा-सा निकलती है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जिस तरीके से अभी हमने कहा कि हमें इस्लाम आज़ादी देता है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बाकी मज़ाहिब की तो हम बात ही नहीं करते, हम मुसलमान औरतों की भी बात करें ना, अगर हम उन्हीं को देखें, आप देखेंगे कि हर साल जो है फेमिनिस्ट जो हैं, वो जाती हैं, सड़कों पर बैनर वगैरह उठाती हैं, वो कहती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी आज़ादी इनको वही चाहिए जो वेस्ट में है, लाइक शॉर्ट्स पहनना, स्लीवलेस पहनना, अपनी मर्जी से आना जाना, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कहाँ गई थी, कोई आप पे कवाम नहीं है, कोई आपसे पूछ नहीं सकता, कोई आपसे आराम से मोहब्बत से इतना सवाल नहीं कर सकता है कि आप कहाँ गई थी या कहाँ से आ रही हैं, अगर जाना था तो मैं ले जाता। इस तरह के सवालात की हमारी औरत जो है, औरत मार्च के अंदर कहती है कि कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए मर्द को। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा जो निज़ाम है, ये चाहती हैं कि वेस्ट का कल्चर आ जाए? सिस्टर देखिए, मैं मेरे हिसाब से अगर एक मर्द को इजाजत नहीं है कि वो किसी अपनी बीवी से या अपनी बहन से या अपनी माँ से पूछ ले कि तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ आ रही हो, तो मेरे हिसाब से वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। हमारे यहाँ की औरतों ने वेस्ट को इतना अपना लिया है, इतना अपना लिया है कि वो इस तरह की ड्रेसिंग करने को
मॉडर्न, हम वो अपने आप को मॉडर्न समझती हैं, लेकिन अगर वो इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती, अगर वो बुर्का पहनती हैं या वो अबाया पहनती, तो उनको लगता है कि हम बहुत पुरानी सोच के लोग हैं, अच्छी सोच के लोग नहीं है, हम लोग बहुत पुराने हैं। लेकिन बात यह है कि आप अगर उनको देखकर फॉलो कर रही हो, आप उनको देखकर चल रही हो, तो आपको फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी तो नजर आ रहे हैं ना, कि अगर आप अपने हस्बैंड से वहां जो चीजें हैं उनको आप अपना कर ये साबित कर रहे हो कि हम उन जैसे हैं, जबकि हम उन जैसे नहीं है। हमें हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि हम जॉब कर सकते हैं, हमें इजाजत है, लेकिन अगर आपका शौहर, आपका बाप, आपका जो भाई है वो आपसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो शक कर रहा है, वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। वो तहफ़्फ़ुज़ जो इस्लाम ने हमें दिया है, वो हमें समझा, वो हमें ये बताना चाहता है कि तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये इस बात की ये बात मैं जब इस्लाम में जब दाखिल हुई, तो ये बात मुझे तब फील हुई कि लाइक मैं कितनी महफूज हूँ, कि अगर कहीं बाहर जा रही हूँ तो मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ है इस बात का कि मेरे साथ मेरा भाई सही, मेरा साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, ये मेरा बाप मेरे साथ है। लेकिन आप बाहर की औरतों को देखो, आप उनका हाल देख लो, वो लोग फिर उनके रेप्स भी ऐसे ही होते हैं, जो अपनी आज़ादी चाहती हैं, वो जब ये चाहती नहीं है कि हमसे कोई आए, हमें कोई पूछे, और जिनके पूछने वाला कोई नहीं होता तो सिस्टर फिर उनके साथ कितना कुछ हो जाता है, तो फिर उनकी जिम्मेदार कौन होता है? तो यहाँ के जो हमारी पाकिस्तानी बहनें हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा इस्लाम हमको ये चीज़ नहीं सिखाता है, हमारा इस्लाम हमको हमारे हमारे जो लिमिट्स हैं उनमें रहना सिखाता है। फिर अगर वो बाहर की औरतें कहती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, तो फिर उनको आज़ादी तो है हर चीज़ की, वो जॉब्स भी कर रही हैं, वो शॉर्ट्स भी पहन रही हैं, वो नंगी भी घूम रही हैं, वो बॉयफ्रेंड भी रख रही हैं, तो फिर किस बात की आज़ादी मार्च होती है वहां पर? यही सवाल तो मुझे मेरा इन पाकिस्तानी खवातीन से भी है कि तुम यहाँ पर बैठी हुई जॉब्स भी कर रही हो, तुम मॉडर्न भी हो, तुम ड्रेसिंग भी करती हो, तुम वल्गर ड्रेसिंग भी करती हो, तुम्हारा जो दिल आता है वो करती हो, तो फिर औरत मार्च में क्यों शामिल होती हो? और कौन सी आजादी है जो तुम चाहती हो? सारी आजादी तो तुमको मिल गई, क्या चाहती हो तुम? मेरा सवाल तो उनसे यही रहेगा फिर। अच्छा सिस्टर, अभी हमने बात की ना कि जिस तरीके से आपने बोला कि वेस्ट में ये हमारी औरतें चाहती हैं कि जिस तरह से वेस्ट की औरतें बड़ी मॉडर्न हैं, तो हम वैसे मॉडर्न हो जाएं, इन्हें बड़ी शर्म आती है कि अगर हम हिजाब में हैं, हम नकाब में हैं तो। अच्छा, अगर शादी में भी ना आप देखेंगी कि अगर आज के दौर के अंदर, मैं तो वो मुस्लिम कल्चर की बात कर रही हूँ, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि हम बाकियों पे बोलते हैं, हम अपनी बात नहीं करते हैं। तो भाई जहां पर हमें लगता है कि अगर हम खुद भी गलत हैं, तो इवन हम खुद को भी सुधारना चाहते हैं, तो हमारा काम तो सिर्फ इतना है ना कि हम इस्लाह कर सके। तो अफसोस की बात यह है कि हमारा जो इस वक्त कल्चर है उसमें अगर आप शादी ब्याह पे चले जाते हो ना हिजाब पहन के, तो वो लोग बड़ी हैरान कुन निगाहों से आपको देख रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, तुमने हिजाब पहन लिया, बाकी कजनों ने नहीं पहना, तो उतारो इसको, तुम कितनी ऑकवर्ड लग रही हो, हम कितने मॉडर्न लग रहे हैं। तो इसी मॉडर्निज्म से मैं तो ये समझती हूँ कि जितना इस्लाम मॉडर्न है ना, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। इतनी मॉडर्निज्म कहीं और है ही नहीं, कोई मजहब आपको देता ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी औरत ये कहती है कि हम मॉडर्न हो जाएं बिल्कुल उनकी तरह। तो आप इसको किसका लफ्ज देंगी, मॉडर्निज्म का देंगी या बेहयाई का देंगी? ये तो बेहयाई है सिस्टर, मैंने तो ऐसी भी बहुत सी दुल्हनें देखी हैं जो हिजाब में होती हैं, और वहां उल्टा होता है, वहां लोग ये कहते हैं कि ये तो दुल्हन है, इसको क्यों हिजाब पहना दिया? क्यों? अगर दुल्हन है तो क्या वो पर्दा नहीं कर सकती है? दुल्हन बनने का मतलब ये क्या आप वाहियात हो जाओ? ऐसा तो नहीं होता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ बेहयाई है, जिसको हमारे जो है माशरे में ये बहुत तेजी से फैल रही है। अगर आप या मैं बैठ के डिस्कस करें, अगर हमें कोई सुन रहा है, क्या पता हमें सुन के किसी के दिन में, किसी के ख्याल में ये बात आ जाए कि वाकई हम गलत कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, ये हमारा ख्याल होता है सिस्टर। जिसने बदलना, जिसको अल्लाह हिदायत नहीं ना देता, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, तो वो फिर लाइन पर नहीं आ सकता है। ये बात आप भी मानेंगे इस बात को? वाकई जिसको अल्लाह हिदायत ने दे उसे बंदे कहाँ दे सकते। और मैं तो ये समझती हूँ जिसको खुद का ही एहसास ना हो उसको कोई भी दुनिया का दूसरा शख्स एहसास नहीं करवा सकता। और बिल्कुल। मजे की बात बताऊं, मैं तो इसीलिए मोटिवेशन के बड़ी खिलाफ हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। वो लोग सिर्फ आपकी इस्लाह करने के लिए होते हैं। मोटिवेशन असल तो आपके अंदर होती है ना, आपको खुद को पता होना चाहिए। और जब इंसान गलती करता है तो इंसान को पता होता है मैं यहाँ पर
गलत हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता। हमारी औरतें जब बाहर के लोगों को देखती हैं कि वो इतनी मॉडर्न हैं, उन्होंने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, ऐसे उनके कंसर्ट हो रहे हैं, ऐसे उनके फंक्शंस हो रहे हैं, ऐसी पार्टीज हो रही हैं, नाइट पार्टीज हो रही हैं, रातों को घरों से बाहर रहती हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। हालांकि वो इससे बड़ी अट्रैक्ट होती हैं, और इसी वजह से आप देखेंगी कि बहुत सी जो फीमेल्स हैं फिर वो रिवर्ट हो जाती हैं, वो दूसरे मज़ाहिब की तरफ चली जाती हैं। इनकी एक रीज़न ये भी है, और जिसमें ये आप इनके बयान भी सुनती हैं, जो ये देती हैं, बड़े झाड़ती हैं बैठ के अपने फलसफे, ये जितनी भी एक्स मुस्लिम्स हैं ये बड़ा बता रही होती हैं कि औरत की कोई आज़ादी नहीं थी, ये था वो था। तो असल में ये है कि उनको मॉडर्निज्म चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप तो रिवर्ट हैं, आप आगा खानिज्म से आई हैं, तो आगा खानिज्म में जो आपने इतना अरसा गुजारा है, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सारी आज़ादी वहां पर, तो आपका इमामत डे होता था जिसमें कोई नहीं था, रोक टोक नहीं थी, आप आज़ाद थी, आप अपनी मर्जी की ड्रेसिंग कर सकती थी, आप हिजाब ना पहनती, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता था, वहां पर नाच गाना फहाशी सारा कुछ होता था। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि हमारी जो औरत अट्रैक्ट होती है दूसरे मज़ाहिब की औरतों की तरफ, और ये देखकर अट्रैक्ट होती है कि वहां पर मॉडर्निज्म है और बड़ी औरतों के हकूक दिए जाते हैं, तो आप भी तो आगा खानिज्म से हैं, आप बताइए आपको कितना इंटरनली सुकून था? सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना, सेटिस्फेक्शन। आपका मन कितना सेटिस्फाइड था? तन में, तन तो आप संवार लेती होंगी, आपका मन कितना सेटिस्फाइड था, मुझे ये बताइए। अरे यहाँ पर तो त्योहार ऐसे मनाए जाते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदुइज्म से बहुत रिलेट करता है आगा खानिज्म। तो यहाँ पर भी गरबा होता था, हर इनके हर त्योहार पे इनको इनको जो है वो फंक्शंस होते थे जिसमें मर्द और औरतें एक साथ नाच रही होती थी। और वहाँ पर भाई भी मौजूद होते थे, वहाँ पर बाप भी मौजूद होते थे, वहाँ पे माएँ भी मौजूद होती थी। लेकिन कोई माँ अपनी बेटी को ये नहीं कहती थी कि बेटा तुम मर्दों में क्यों घुस रही हो। कोई बाप अपनी बेटी को ये सवाल ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मॉडर्न है, वो लोग ब्रॉड माइंडेड है, वो अपने आप को ब्रॉड माइंडेड समझते हैं। लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं उनके पीछे की फिर कहानियां भी बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे इस्माइलियों में भी कि अब वो बातें बयान करने वाली तो खैर नहीं है, लेकिन फिर जहाँ मॉडर्निज्म आ जाए ना, तो वहां पर बेहयाई भी फैल जाती है, वहां पर रेप केसेस भी फैल जाते हैं। क्योंकि कम्युनिटी है तो छुपा दिया जाता है, लेकिन ये चीजें यहाँ भी मौजूद हैं। और जब तक मैं स्माइलिज्म में थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैं अपने आप को मुसलमान कहती थी, लेकिन मैं सुकून में नहीं थी। पता नहीं क्या मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती थी कि यार मैं मुसलमान तो हूँ, क्योंकि यही माना था कि बस अल्लाह एक है क्या। लेकिन फिर मुझे जो है वो बाद में ये जो है वो फील होने लगा कि नहीं यार, ये कुछ कुछ गलत है, कुछ गलत है। जब रिसर्च की तो पता चला कि गलत क्या था। असल जो हक था वो छुपाया जा रहा था हमसे, और बाकी जो हक थे वो जताए जा रहे थे हम पे, जैसे कि फहाशी और बेहयाई, दूसरे मजहबों की तरह जो है वो आज़ादी। लेकिन ये सब चीज़ें जो थी वो इस्लाम में नहीं थी। तो मैं जब इस्लाम में आई तो मुझे सुकून मिला। जब तक मैं इस्लाम में नहीं थी तो मैं बहुत बेसुकून थी उस वक्त। अच्छा सिस्टर, मैं असल में ना आपसे ये भी थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ कि वहां पर जैसे टोटली मॉडर्न माहौल था, आपने बताया ब्रॉड माइंडेड लोग थे, हाँ जी जिनके बिल्कुल तंग ब्रॉड जहन माइंडेड। थे वो ब्रॉड माइंडेड, लेकिन अफसोसी बात है तंग जहन थे और कुंद जहन थे बेचारे। तो मैं ये थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ आपसे कि वहां पर तो कोई रोक टोक नहीं थी ना कि आप जिस तरह की ड्रेसिंग करें, तो क्या वहां की जो औरत थी वो इतनी मॉडर्निज्म पाकर प्रोटेक्शन फील करती थी कि भाई मैं बड़ी प्रोटेक्ट हूँ, अगर मैंने स्लीवलेस पहने हुए हैं, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और मैं ऐसी त्योहारों में बैठी हुई जहाँ मर्द और खवातीन इकट्ठे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, तो क्या वो इंटरनली, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो इंटरनली सेटिस्फाइड थी, कि उसको अच्छा फील होता था क्या? सिस्टर बात सारी ये है कि जिसके अंदर ईमान नहीं होता ना, तो वो फिर सेटिस्फाई ही होता है, क्योंकि वो फिर बाहर की औरतों को भी देख रहे होते हैं ना, ज्यादातर मॉडर्निज्म भी देख रहे होते हैं। तो उनके अंदर फिर ईमान की कमी होती है, और जहाँ फिर ईमान की कमी होती है तो वहाँ दिल सेटिस्फाई होता है। लेकिन जहाँ ईमान ताजा हो ना, तो वो रूह बेचैन हो जाती है। उसकी रूह इजाजत नहीं देती कि तुम जो है वो अपना जो है अपने सर से दुपट्टा उतारो। उसकी रूह इजाजत नहीं देती कि तुम पर्दा ना करो। उसकी रूह इजाजत नहीं देती कि तुम इस तरह की बेहयाई, इस तरह की पार्टीज में जाओ, इस तरह की ड्रेसिंग करो।
हमारे इस्लाम में क्या हमें सिखाता है कि औरतों की जो जो पजामा होता है, वो जो नीचे जो हमारे होते हैं एंकल्स होते हैं, उनसे ऊपर ना हो, उनसे भी नीचे हो। यहाँ तो लोग ऐसी ड्रेसिंग करते हैं कि उसके बाद भी उनके दिल सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि वो हमें हमें फॉलो, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, दर हकीकत वो जो है वो फेमिनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इनका इमाम जो जिसको ये लोग कहते हैं कि वो हमारी आली अली में से है, वो खुद पेरिस में रहते हैं। तो वो खुद भी जो है वो खुद भी ऐसे हैं, इनके इमाम जैसे हैं वैसी उनकी जमात है, जैसा इनका इमाम इनको बोलता है वो उसको फॉलो करते हैं। तो इन लोगों को जो है, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम छोटे कपड़े पहने या हम बड़े कपड़े पहने। ये लोग दर हकीकत ये लोग फेमिनिस्ट हैं मेरी नजर में। अच्छा, मतलब कि जहाँ शैतान हमला आवर हो तो शैतान उनको बहकाता ही रहता है कि हाँ तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, अगर तुम इस तरीके से कर रही हो, अगर तुम नाच गाना कर रही हो या मर्दों के जमातों के अंदर बैठ रही हो तो बड़ी प्यारी बहुत लग रही हो। कूल उन लग पे रही ऊपर हो। शैतान हावी होता है, शैतान हावी होता है। हम्म। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे ना इसलिए किया था क्योंकि बहुत सी ऐसी औरतें हैं, खवातीन हैं, उनके बड़े इस चीज़ बहुत से लोग सुनते भी होंगे, अक्सर वीडियोस वगैरह सामने आ जाती हैं, नज़रों से गुजर जाती हैं कि वो बड़े दुखी दिल से कह रही होती हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं भी होती हैं, लेकिन उन्होंने हिजाब लेना स्टार्ट कर दिया होता है, खुद को कवर, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हिदायत की राह ही हुई, जिनको उन्होंने चुना होता है, लेकिन अभी तक वो मुसलमान नहीं होती, लेकिन उनको एक चीज़ समझ आ गई होती है कि वो कितनी गंदगी और गलाजत भरे माहौल के अंदर रह रही हैं। तो ये चीज़ उनको समझ आ गई होती है। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बस एक करिश्मा है, एक साइन है हिदायत का, मैं तो ये समझती हूँ। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हमारी औरत ये चाहती है कि हम उस तरह के मॉडर्न हो जाएँ, जबकि उनमें से बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनको आप सुनेंगे भी सही कि वो चाहती हैं कि इन गलाज़त से हम बच जाएँ, हम मर्दों की गंदी निगाहों से बच जाएँ। अभी रिसेंटली अभी जिस तरीके से हम लोग बड़े एक्ट्रेसेस को देख रहे होते हैं कि हाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, ड्रामा इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरह से करती हैं, तो बड़े लोगों का दिल करता है कि हम एक्टिंग की तरफ जाएं। नो डाउट बहुत सी हमारी फीमेल्स बहनें हमारी सुनती हैं तो वो कहती हैं कि वाह ये कितनी प्यारी लग रही है, इसके कितने फैन हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए, मेरे भी आज इतने की फॉलोअर्स मिसाल बनेंगे, बताऊं मैं भी मैं मशहूर आपको, होंगी। आज की हम्म। मिसाल क्या है? जी जी। टिकटॉक, स्नैपचैट, ये क्या ऐसा ही है? है। ये यही तो हमें बढ़ावा दे रहा है एक्टिंग का, आगे निकलने का, ऐसा ही है। मॉडर्न होने का। यही चीज हमें बिल्कुल बढ़ावा, ऐसा ही है। और ऐसा तेजी ही है। से बढ़ रही है। ऐसा ही है। और मैं इसमें आपको यही चीज बता रही थी कि बहुत सी उसमें से औरतों ने छोड़ा है, एक सनम चौधरी हैं, जिन्होंने रिसेंटली कुछ अरसा ही हुआ है उनको, उन्होंने ये इंडस्ट्री वगैरह शोबिस की दुनिया छोड़ी है। तो वो बताती हैं कि वहां पर कितनी गंदगी है, कितना गंदा माहौल होता है, किस तरीके से मर्द और खवातीन इकट्ठे बैठते हैं, जबकि हमारी औरत को ये बड़ा कूल लगता है कि मर्द और खवातीन इकट्ठे हों हर फंक्शंस में, हर पार्टीज में। और अगर आज की औरत ये सुन ले ना कि हमारी ये छोटी, हमारी यूथ के दिमाग इतने खराब हुए हुए हैं ये औरत मार्च की वजह से, ये फेमिनिस्ट की वजह से, कि उनको अगर पता चले ना कि आज जो पार्टी है उसके अंदर या कोई फंक्शन हो रहा है घर में और उसमें लड़के नहीं है, तो वो कहती हैं ओ हो सो ऑकवर्ड, मुझे बहुत गंदा फील हम्म। हो रहा है कि यहाँ पर लड़के नहीं। मतलब अफसोस की बात है ना, घटिया चीज है, घटिया सोच पैदा कर दी गई है, यूथ के ब्रेन इतने वॉश कर दिए गए हैं ये इन औरतों ने। और सड़कों पे निकल कर हमारी बहनों को, हमारी छोटी छोटी बेटियों को इतना जलील और रुसवा कर दिया है कि उनके छोटे छोटे दिमाग जो है, नन्हे से दिमाग के अंदर ये चीज आ गई है कि हमें कूल होना है और हमें मॉडर्न होना है, और हकीकी मॉडर्निज्म से और हकीकी आजादी से वो दूर जाकर वो कैद हो रही हैं एक्चुअल में। ठीक है। तो अच्छा अनुषा सिस्टर, मैं आपसे एक और सवाल भी करूंगी कि मैंने अभी बात यहाँ पर की कि हमारे घरों में अगर जिस तरीके से आज की जो हमारी यूथ है उनको ये बड़ा फील होता है कि अगर कोई पार्टी हो रही है तो उसमें मर्द नहीं है तो फिर कितना ऑकवर्ड है ये वो। तो आपके त्योहारों के तो अंदर मर्द और खवातीन सारे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मैं आपका हवाला इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारी जो औरत है ना वो वेस्ट के कल्चर से बड़ी मुतासिर होती है, वो दूसरे मजाहिब से बड़ी उसको अट्रैक्शन फील होती है कि यहाँ पर तो मर्द और ज्यादा इकट्ठे, सिर्फ इस्लाम में ही ऐसा नहीं है, सिर्फ इस्लाम में ही ऐसा नहीं। असल तकलीफ उनको यहाँ पर स्टार्ट होती है ना। ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो है नहीं उन्होंने, उन्होंने देखना तो है नहीं अल्लाह ने क्या कहा है। हम तो ये कहते हैं ना कि हमने जो सुना हमने वो अतात की ना अल्लाह ताला की, ठीक है, लेकिन उनको तकलीफ, उनकी असल तकलीफ ये होती है कि नहीं भाई हमें तो बस मॉडर्न होना है, हमें उनको फॉलो करना है, जितनी गंदी ड्रेसिंग हम कर सकते हैं हम करें, हम मर्दों के साथ जितनी दोस्ती कर सकते हैं हम करें, हम जितनी गलाजत कर सकते हैं हम करें। ठीक है।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका भी तो, आप भी आगा खानिज़्म से हैं, तो वहाँ पर तो ये सारा कल्चर जो है वो इकट्ठा हुआ करता था, मर्द और ख़वातीन इकट्ठे बैठे होते थे। तो वहाँ पर क्या मतलब फीलिंग होती थी? बड़ा अच्छा माहौल लगता था, मतलब कोई भी एक भी ऐसी औरत नहीं थी जिसको होता हो कि यार ये मैं कहाँ आ गई हूँ, किस गंदगी में आ गई हूँ? नो डाउट शैतान तो हर टाइम ऐसे लोगों के साथ होता है जो ईमान पर नहीं होते हैं, लेकिन औरत की खुद की भी तो एक होती है ना अंदर से, उसको पता चल जाता है दूर से। मैं ये समझती हूँ औरत की छठी ही से बड़ी तेज होती है। अगर कोई मर्द उस पर गंदी निगाह डाल रहा हो तो उसको बड़ा पता चलता है कि हाँ ये मुझे इस तरीके से घूर के देख रहा है। तो मर्द और खवातीन के ये जो इकट्ठे होते थे सारे जितने भी आपके जमात खाने में फंक्शंस वगैरह, तो मतलब वहां पर क्या आपकी क्या फीलिंग थी? आप मुझे बताएं। अब आप इस्लाम में आई हैं तो आपको क्या लगता है कि वो कैसा माहौल था? क्योंकि मैं अपनी बहनों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस अट्रैक्शन की तरफ आप जा रही हैं, तो जरा आप मुझे ये बताइए कि आपकी अब क्या फीलिंग होती है कि वो कैसा माहौल था? मैं जब थी तब तो मुझे ऐसा लगता था कि यार सब ठीक है, सब नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे चाइल्डहुड से ही आपको साथ जो है वो को एजुकेशन जो है वो आगे दी जाती थी। और आप जो है वो बचपन से ही जब बड़े होते जाते थे तो वो लड़कों के साथ पढ़ना और ये सारी चीजें होती थी। और त्योहारों पे जो है वो बकायदा मैंने जो देखा है अपनी आंखों से, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आंखों आंखों में बातें होना, साथ जो है वो डांडिया खेलना, साथ जो है वो गरबा खेलना। तो ये सारी चीजें तो ज़ाहिर है नजर आ ही जाती थी, और मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी नजर आती होंगी। लेकिन पेरेंट्स फिर इसीलिए भी नहीं बोलते होंगे क्योंकि हम तो हैं ही मॉडर्न, हम लोग ब्रॉड माइंडेड है। हम अगर अपने बच्चों को अब रोकेंगे तो फिर तो वो हमसे सवाल करेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं रोका। तो ये सारी चीजें तो होती हैं वहाँ पे, ये सब जो है वो वाहियातपना होता है। लेकिन अब जब मैं इस्लाम में आ चुकी हूँ तो मुझे जो है वो ऐसा फील होता है कि वो नहीं होना चाहिए। एक अगर आप एक एक जो है वो फिरका है जो आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हो, और मुसलमान कहने के बाद भी आप जो है वो अपने आप को मॉडर्न मॉडर्न बना रहे हो, अपने अपने जो रवायात हैं उनसे जो आप पीछे जा रहे हो, इस्लाम की सारी तालीमात को आप पीछे छोड़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। मैं तो उसको बिल्कुल भी सही नहीं कहूंगी। और जब मैं थी तब भी मुझे ये चीज अच्छी, मेरा दिल बहुत बेचैन होता था, मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगती थी, और मैं बहुत कम जाती थी, मैंने जाना भी कम कर दिया था क्योंकि मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैंने जब रिसर्च शुरू की और फिर मैं इस्लाम में आई, तो अब मुझे अब एहसास होता है कि वाकई मेरी सोच बिल्कुल ठीक थी, और मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी, और मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया इस्लाम में आके।